اذان کی مقدس آواز تو کرتی مومن کی روح کی مسیحائی ہے، لیکن سردیوں کی اذان، خاص طور پر سردیوں کی فجر کی اذان سننے کا لطف جدا گانا ہے۔ مانو بیکل روح میں قطرہ قطرہ سکون اتر رہا ہو، پر اس کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتا، بالآخر آدھے دھڑ سے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا بیٹھ گیا۔ یہ رگوں میں ایمان کی حرارت دوڑتی ہوئی آواز اسے عجیب بیکلی میں مبتلا کر رہی تھی، ایک بے چین حرارت سی تھی جو اس کے وجود میں چیونٹی کی طرح رینگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر مدھم لے پر چل رہی سانس اور دھڑکن کے سنگم میں اس کیفیت کو گم کرنے کی سعی میں جت گیا تھا۔ صدائے حق کے مقدس اور مترنم چاروں جانب سے گونج کر ایک نقطے پر اکٹھا ہو کر سماعت میں رس گھول رہی آواز سے روح اور ایمان کو تازہ کرتے اذان کے بعد کی دعا پڑھتے اس نے کروٹ بدلی تو ایک سیکنڈ کے لیے اسے یوں بیٹھا دیکھ ہڑبڑا سی گئی۔ پھر اس کے چہرے پر بکھرا اضطراب اور تناؤ دیکھ کر رہا سا نیند کا خمار بھی بھگ سے اڑا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے پیشانی مسلتا دیکھ سر پر دوپٹہ دروس کرتی وہ متفکر سی مستفسر ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ شب خوابی کا گلہ کر رہی آنکھیں کھول کر ایک نظر اس پر ڈالتا وہ بیڈ سے اترنے لگا۔ آپ رات صحیح سے نہیں سوئے نا؟ صورت سے اس کا بازو تھامتی وہ اس کی دھڑکنیں تھما گئی۔ سر میں درد تو نہیں ہے؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں آپ کی۔ دوسری جانب کی خاموشی پر اس کی تشویش مزید بڑھی تھی، جبکہ وہ ترچھی نگاہوں سے اس کا خوابیدہ گلابی چہرہ دیکھ رہا۔ بھرپور نیند سے جاگی شفاف آنکھیں جن میں فقط اس کے لیے فکر تیر رہی تھی۔ آپ کی فرض کی ادائیگی کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بنا ہاتھ آزاد کرائے اس نے احساس دلانا چاہا۔ آپ بھی ہمارے فرض میں شامل ہیں۔ گریف کچھ سخت کرتی وہ بلا جھجک بولی تو وہ یک و یک سے اچھل پڑے دل کو سنبھالتا پورا کا پورا اس سمت مڑتا، کسی غیبی قوت سے بالکل قریب جھکایا۔ پگھل جاتی ہے قرب کی حدت سے پارسائی، اکثر وہ بھی بہک جاتے ہیں جن کا ارادہ نہیں ہوتا۔ پھر سے کہیں۔ لمحے بعد کان کے بہت قریب گونجی مخمور آواز میں پگھلاتے ہوئے جذبوں کی تپش تھی جس نے مقدس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ ہمارا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ ہمیں جگا دیتے، ہم کوئی دوائی وغیرہ ہی دے دیتے۔ خواہ نیند خراب ہوئی۔ شانے پر دوپٹہ دروس کرتی وہ اتھل پتھل دھڑکنوں کے سنگ گھگیائی۔ ایک جملے میں اتنی بڑی تشریح ایڈجسٹ تو نہیں ہوتی، پر اس مرتبہ کے لیے ٹھیک ہے۔ آئندہ اعتراض کیجیے گا ورنہ۔ ذو معنویت سے کہتے گرم سانس اس کے کان کے قریب آزاد کر اپنی دھڑکن کے ساتھ بندھی اس کی دھڑکنوں کو بھی رہائی دیتا وہ اٹھا تھا۔ دی جان کی بچی! واش روم سے گیزر آن کر آنے کے بعد بھی اسے ہنوز اسی کیفیت میں گرفتار بیٹھا دیکھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آ جائیں۔ وضو نہیں کرنا؟ جی کرنا ہے۔ سر پر دوپٹہ دروس کرتی وہ بیڈ سے اتری، پھر دلاور کے سہارے واش روم سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر سردی سے کپ کپاتی ہوئی آ کر نماز کے لیے لگائی کرسی پر بیٹھی۔ سردی ہے؟ اپنی کرسی پر پڑی شال نازک شانوں پر ڈالتے تعسف سے نفی میں سر ہلاتے وہ مڑنے لگا کہ پشت سے ابھرے اس کے مترنم لہجے پر منجمد ہوا۔ کبھی آپ نے سنا ایک پیاسا کنویں تک جاتا ہے، دوسرے کو مشقت سے پانی نکال کر پلاتا ہے اور خود تشنہ لب ہی لوٹ جاتا ہے؟ شاید پیاس کے باوجود۔ کس قدر غیر حقیقی تصور ہے نا؟ اس کے ٹھہرے متانت آمیز سوال پر کچھ ساتھ کے لیے اس کا پورا وجود برف کی سل میں تبدیل ہوا۔ ذہن میں یکایک جیسے ہر قوت سے مبرہ سیاہ دھواں بن گیا تھا۔ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ بڑی دقت سے خود کو کمپوز کر کے الفاظ ادا کرتا وہ تیزی سے جا کر بیڈ پر دراز ہوتا، منہ تک کمفرٹر میں غائب کر گیا تھا۔ دعا ہے وہ وقت جلد آئے جب ہمیں آپ کی امامت نصیب ہو۔ سر اڑا کر صدقے دل سے دعا کرتی وہ نیت باندھ کر رب کے حضور حاضر ہوئی، اور ادھر وہ اپنے اندر بڑھتے ہوئے اضطراب کے دھوئیں سے سانس مشقت سے کھینچ رہا تھا۔ وہ بھی ویسا ہی مسلمان تھا جو جمعہ کی نماز بھی مل جائے تو پڑھ لینے پر یقین رکھتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ خدا ان کی عبادت کا محتاج ہو۔ واضح رہے کہ انسان عبادت اور بندگی اپنے لیے کرتا ہے، اپنے رب پر احسان کرنے کے لیے نہیں۔ رب کے پاس بندگی کرنے والوں کی کمی نہیں، پر آپ اپنے لیے اکلوتے ہی ہیں جو آخرت کی پونجی جمع کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اتفاقاً جمعے کی نماز ادا کرتا تھا، اب بھی کچھ نہیں بدلا تھا، پر گزشتہ دنوں سے مقدس کی نماز کی پابندی میں مدد کرتے وہ اوقات نماز سے واقف ہونے لگا تھا، ساتھ ایک بیکل کیفیت بھی جس نے آج اسے اذان سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے جگائے رکھا، اور اب مقدس کی انڈائریکٹ دعوت نے حقیقتاً اس کے ذہن و دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اسی کیفیت میں گرفتار نہ جانے کب تک خود محو جنگ رہتا، جب پہلو میں ہوئی ہلچل پر کبوتر کی طرح آنکھیں چرانے کے انداز میں آنکھیں موند گیا۔ تھوڑا سا سر اٹھا کر اس تکیے پر رکھ دے، ہم مالش کریں گے تو افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا بلینکٹ ہٹاتے اس نے تکیے پر تولیہ بچھاتے ہوئے اشارہ کیا، جس پر وہ اپنے اندر انکار و اعتراض کی قوت ناپید پا کر عمل
कर गया। अपने आसाब को ढीला छोड़ दें, सोचने से सिर्फ आसाब पर दबाव पड़ता है और सरदर्द नींद का मसला भी और कुछ नहीं। प्याली से तेल लेकर अपनी नर्म ठंडी उंगलियां उसकी बालों में उलझाती वो मुतबस्सम लहजे में बोली तो उसने भारी पटियों को ज़रा सा वाह करके उसका ताज़ा गुलाब सा चेहरा, शबनम से धुला शादाबी पुरनूर चेहरा देखा। ये मुझ जैसे के नसीब में किस तरह लिखती गई? दिल ने गैर जानिबदारी से सवाल किया। आंखें बंद कर लें अब। जवाब से पहले उसने रुई से नर्म सर्द हथेली उसकी आंखों पर रखकर जैसे जलती सवाल करती आंखों को चुप करवाया। फिर उसकी तासीर मसीहाई से मुतहर्रिक रूह पर पड़े छालों को छूकर गुले गुलजार करती उंगलियों का रक्स और ज़ेरे लब जारी सुर रहमान की तिलावत उसे गहरी नींद की वादियों में बहा ले गई। जाने क्यों तुझसे दिले राज को इतनी है लगन, कैसी कैसी तमन्नाओं की तहमीद है तू। आम दिनों के मुकाबिल आज वो जल्दी ही हवेली से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। उसके हुक्म पर मेन रोड से ड्राइवर ने बजाय यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल के रास्ते पर गाड़ी डाली और ठीक 15 मिनट बाद वो शहर के महंगे तरीन बॉयज़ हॉस्टल के सामने मौजूद थी। सुबह के 9 बजे का वक्त था। हॉस्टल के सदर दरवाजे पर अच्छी खासी चहल पहल थी। कुछ नक्सक से तैयार होकर तो कुछ अलूल जलूल हुलिये वाले लड़के अंदर बाहर कर रहे थे। शफीक भाई, उस लड़के को बुला लाएं। सदर दरवाजे पर डिलीवरी लेने निकले लड़के पर नज़र पड़ते उसने उजलतन झुककर ड्राइवर को हुक्म दिया। जी बीबी सा। ड्राइवर फ़ौरन गाड़ी से उतरा और 2 मिनट के अंदर वो लड़का खिड़की पर था। मिज़राब ने महज आवाज़ के गुज़र के लिए शीशा नीचे किया। अपने बॉस से जाकर कहें 2 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी उनकी अपनी ज़ाती होगी। अपनी बात मुकम्मल करके उसने शीशा ऊपर भी नहीं किया था कि वो लड़का तेज़ी से अंदर की जानिब लपका। शायद नहीं, यकीनन वो हवेली की गाड़ी पहचान गया था। टी शर्ट फंसाता वो उलझे बेतरतीब बालों के साथ गाड़ी की जानिब तकरीबन दौड़ता हुआ आता नजर आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता वो हनूज वर्तए हैरत में गिरफ्तार था। मुरब्बा बनाने की रेसिपी सोच रही थी। पहले से भरी हुई वो फाड़ खाने को दौड़ी। मुझे नहीं खबर कि मेरे हॉस्टल के सामने आइडियाज़ इतने अच्छे आते हैं, वरना अब तक तो एक दो अहम मामलात सुलझाने की रेसिपी मैं भी सोच लेता। दोनों हाथों से बाल संवारता हुआ वो जू मायनियत से अपनी जोन में वापस आ चुका था। लम्हे भर की हैरानगी उसके आतिशफिशां रूप से जाती रही। अब बिल्कुल पुरसकून सा वो अपनी साबका टोन में आंखों में शरारत का जहान बसाए अपना हुलिया सुधार रहा था। आज पर्चा नहीं था, इसलिए वो आराम से जाकर लड़के को नीचे नाश्ता लाने भेजकर खुद शर्टलेस नाश्ता खाकर वापस लंबी तान कर सोने की प्लानिंग कर रहा था, जब नाश्ते की बजाय धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। और भला आर्यान उस्मानी के सिवाय दाजी और मिज़राब उस्मानी की धमकी देने की जुर्रत कौन कर सकता था? फिर क्या था? झटके से हाथ आई, टी शर्ट उठाई और लिफ्ट में कूद पड़ा। बहुत फनी था। मिज़राब ने उसकी गैर संजीदगी पर दांत कचकचाए, नवाजे। सीने पर हाथ रखकर वो ज़रा झुका। वैसे मेरे हॉस्टल को सादत क्यों बख्शी? चलो छोड़ो, अगर बख्श दिया अब तो चलो, यहाँ करीब एक ज़बरदस्त टिफ़िन स्पॉट है, तो मैं नाश्ता करवाता हूँ। शफीक भाई आ जाएं। उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही उसने झुककर बाहर खड़े ड्राइवर को आवाज़ लगाई। ड्राइवर के फ़ौरन हुक्म की तामील करने पर उसकी क्लास लगाने का कसद किए बैठी वो कुलस कर पहलू बदल गई। थक कर वो आखिरी और मुश्किल तरीन राह पर अमल करने के लिए उसके दरवाजे पर आई थी। वो जो अंदर से मुकफ़्फ़ल था। पहली दस्तक के बाद वक्फा लेकर दूसरी दस्तक देकर उसका फ़ौरन ये जा वो जा होने का इरादा था कि दरवाज़ा वाह हुआ और उसका आज़द संजीदा चेहरा फ्रेम में नमूदार हुआ, जो नाक पर धरे ऐनक की वजह से कुछ ज़्यादा ही संजीदा लग रहा था। मीराल यहाँ तक आने के फ़ैसले पर जी भरकर पछताई। अंदर आ जाएं। उसके हटकर रास्ता देने पर उसे पेशरफ्त करना पड़ी। मैं खामोशी की ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं, अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो तो प्लीज़। आम दिनों के मुकाबिल उसके लहजे की ख़ास नरमी मफ़क़ूद थी। मीराल का दिल सिकुड़ कर वक्फे से फैला। कहना है आपने वाकई कुछ? खामोशी ना टूटने पर अब उसके लहजे में रोब शामिल हुआ। जी वो कहना था, मेरा मतलब है पूछना था, पैकिंग सब ठीक हुई थी ना? मतलब कुछ और तो हड़बड़ाकर वो मुंह में जो आया कहती चली गई। जवाबन बारान के आईब्रो ऊपर को उठे, जबकि वो थूक निगलती खुद को कोस रही थी। पैकिंग बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर आपने खुद पर इतना जबर अपनी खाला साहिबा के कहने पर किया है तो बता दूं, कोई फ़ायदा नहीं वकालत का। मैं इरादे बदलने के लिए नहीं बना था। ना सिर्फ आमद की असल वजह समझ जाने बल्कि बरमला इजहार भी कर देने पर मिराल पर घड़ों पानी गिरा था। और कुछ वो खालासा ने रात से कुछ खाया नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मिज़राब भी जल्दी चली गई यूनिवर्सिटी आज, और खालू साहब भी चले गए दादी के साथ। अगर आप उन्हें जुमला अधूरा छोड़कर उसने आस भरी मुल्तजी निगाह उठाई। अच्छा,
उसने सीने पर दोनों हाथ लपेटे थे। आपको वाकई लगता है आपकी खाला साहब मेरे कहने पर खाएंगी, बिना अपनी बात मनवाए? अगर लगता है तो गारंटी लें, मैं साथ चलता हूँ फिर। उसने खुला ऑफर रखा। पर खाला साहब की बात, मीराल बस एक सवाल का जवाब दें। कतई कलाम कर उसने एक कदम आगे लिया। क्या आप चाहती हैं मैं मासा की बात मानूं? लेकिन खाला साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं दादी की जगह लूं और आप मासा की जगह लें, हाँ या ना? एक मर्तबा फिर जुमला कता करके उसने कतियत से पूछा तो मिराल का सर आप ही आप नफ़ी में हिला। मतलब आप भी मानती हैं कि ये नाइंसाफ़ी है? उसके अगले गंभीर सवाल पर मिराल चुप ही रही। खामखा वो उसे मुश्किल में डाल रहा था। आप जवाब नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं। उसका साबका लहजा लौट आया। मिज़राब अपनी लिस्ट दे चुकी है शॉपिंग की, वहाँ नोट पैड रखा है, आप भी नोट कर दें। वो कहता हुआ रिंग हुआ फ़ोन लेकर एक जानिब हटा और मिराल फ़ौरन रफू चक्कर हुई। बमुश्किल 10 मिनट की ड्राइव पर छोटा सा ढाबा नुमा टिफ़न स्पॉट मौजूद था। खुले में पैर के साई तले प्लास्टिक की कुर्सी और टेबल डाले हुए, जिस पर नशिश संभाल कर बैठे इक्का दुक्का लोग नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़। कस्टमर्स में करीब सारे स्टूडेंट्स थे। आ जाए मलका आलिया, इस आम से ढाबे को अपनी ख़ास कदमों से मोतबर कर दें। वो सरसरी निगाहों से उस छोटी सी जगह का जायज़ा ले रही थी जब वो डोर खोलकर सीने पर हाथ रखकर चीनी तर्ज पर झुका था। आपको क्या लगता है आर्यन साहब, मैंने सुबह 1 घंटे की नींद खराब करके, अपनी इतनी इम्पोर्टेंट क्लास मिस करके, आपके हॉस्टल तक ख्वारी करके, आपके रूबरू बैठकर नाश्ता एंजॉय करने के लिए ये सब कुछ किया? मौसूफ के लबों पर खिलती शरीर मुस्कुराहट ने हकीकतन उसके दिमाग को आउट किया था। हाय, हमें क्या क्या लगता है ये हम आपको किस तरह से बताएं मिज़राब साहब? देवदास बनने वाले अंदाज में तवील ठंडी सांस खींचते उसने उसकी कलाई थाम कर खींची और फिर खींचता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आर्यन, वो दबी आवाज़ में चीखी, तशरीफ़ रखें बीबी साहब। लेकिन वो चिकना घड़ा था। कुर्सी खींच कर पेश करता दिलकशी से मुस्कुराया। बैठ जाओ यार, यहाँ की हलवा पूरी का जवाब नहीं। दूसरी कुर्सी खुद संभाल कर हनूस खड़ी मिज़राब की खूंखार निगाहों की जद में, जिसके मुंह में हलवा पूरी का जायका घुल रहा था, वो हकीकतन ढीठों का सरदार था। मैं यहाँ हलवा पूरी खाने नहीं आई, समझ आ रही है? जब से उसने दांत पीसे, उसके इत्मीनान से वो गीली लकड़ी की तरह सुलग उठी थी। छापा मार अंदाज में ना आती तो बाखुदा शाही दस्तरखान सजा देता, लेकिन अभी इसी पर गुजारा करो। उसकी अपनी ही तान थी। आर्यन, टेबल पर हाथ मारती वो बरस पड़ने को थी। क्या कर रही हो झांसी की रानी? आसपास लोगों को ये ब्रेकअप सीन लग रहा होगा और सोच रहे होंगे कि एक अच्छे खासे घर की लड़की को इस फटीचर ने फंसाया होगा और अब लड़की उसे डिच करने जा रही है बावजूद हैंडसम फेस होने के। व्हाट? अलग ही मंतक पर मिज़राब का हकीकतन दिमाग भग से उड़ा। और नहीं तो खुद तो शहजादियों की तरह ड्रेसअप होकर आई हो और मैं नाइट ट्राउज़र और शर्ट में। उसने मुंह बिसोरा। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। वो झुनझुना उठे दिमाग के साथ कुर्सी संभालती बोतल को लबों से लगा गए, जबकि उसने मुकाबिल का दिमाग फ्यूज़ कर वहाँ कस्टमर को अटेंड कर रहे वाहिद लड़के को करीब बुलाया और ऑर्डर प्लेस करने लगा। इतने दिनों से तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है? चची को कॉल क्यों नहीं की तुमने? तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि चची किस कदर परेशान है तुम्हें लेकर? बंदे में कम से कम इतनी एहसास ज़िम्मेदारी तो हो। नाश्ता आते ही वो शुरू हो चुका था। साथ भरी बैठी मिज़राब भी शोले उगलने लगी, लेकिन उधर से रद्द अमल सिफर, जिस पर उसके पुरसकून हुए आसाब वापस चटकने लगे। आर्यन उस्मानी, पेड़ों से नहीं तुमसे मुखातिब हूँ मैं। ज़रा सा आगे को झुककर वो गरजी। फ़ोन ऑफ हो गया था शायद। निवाला मुंह में डालते उसके सरसरी जवाब पर वो गोया मिज़राब के अंदर एक आतिशगीर पहाड़ का मुंह फटा था। शहर में बिजली की हड़ताल चल रही है या नेटवर्क ब्रेकडाउन था? मुठ्ठियाँ भींचती वो ज़ब्त आजमा रही थी। मुझे इल्म नहीं। उसने लापरवाही से शाने झाड़े। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे यहाँ बात करने चली आई। लानत है मेरी सोच पर, मुझ पर। यू कैरी ऑन। सुलगती आंखों में इश्तियाल की सुर्खी लिए वो कुर्सी खिसका कर खड़ी होने लगी कि सूरत से आर्यन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। रिलैक्स, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स? ऑफ कोर्स तुम तो रिलैक्स ही हो। कोई तुम्हारी फिक्र में कितना जलीलो ख्वार हो रहा है उससे तुम्हें क्या? तंग कर हाथ खींचती वो तंजन बोली। कोई की वजाहत करो। उसकी निगाहें खास अंदाज में उठी। चची सा और कौन? एक पल को ठहर कर उसने घर झाड़ने जैसा जवाब दिया। रियली? उसकी भवें ऊपर को शूट हुई। फिर प्लेट से हाथ खींचकर निगाहों का मरकज़ उसके तमतमाते नकूश पर गाढ़े इत्मीनान से गोया हुआ। मिज़राब उस्मानी, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी इस इज़्तिराब की वजह क्लियर कर दूं। तुम्हें यहाँ अपनी चची सा की परेशानी नहीं, अपनी गलत फहमी से पैदा की पशेमानी खींच कर लाई है, क्योंकि तुम्हारी मासूम सी सोच को लगता है
क्योंकि तुम्हारी मासूम सी सोच को लगता है तुम्हारी उस दिन की बकवास को सीरियस लेते हुए मेरे अंदर देवदास सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है और मैं ये दुनिया फरेब है का राग अलापते हुए जंगलों में निकलने लगा हूँ, राइट। उंगलियों को साफ करते उसने बड़े वसूख से अपनी अतरंगी मफरूज़े की तस्दीक चाही थी उससे। बकवास। चंद साथ सालम निगलती निगाहों से उसे घूरने के बाद लानत भेजती वो खुशबूदार हलवा पूरी की जानिब मुतवज्जो। गो अतरंगी ही सही, पर कहीं ना कहीं आर्यान की बात दुरुस्त थी। वो लजीज हलवा पूरी से लुत्फ उठाने लगी जबकि वो पीछे कुर्सी से टेक लगाकर फुर्सत से तलबे दीद को सैराब कर रहा था। उसकी नज़रों का इर्तकाज खुद पर महसूस कर भी खाने में लगी रही थी। तुम खुद तो ठूंस चुके हो, अब ऐसे घूर कर नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं। घर से पानी तक पीकर नहीं निकली हो तुम, डैश इंसान की वजह से। लेकिन कब तक? बिलाखिर यकटुक ठहरी निगाहों से आजिज आकर उसने घर का, जिस पर नफ़ी में सर हिलाते मुतबस्सम निगाहों का मरकज़ बदल कर उसने उसी वेटर को इशारे से बुलाया। मिज़राब का नाश्ता ख़त्म होने तक भाप उड़ाता हुआ तंदूरी चाय के 2 कप हाजिर थे। चाय पीने तक तुम चची सा को कॉल कर चुका हूँ मैं उन्हें। कप उसकी सिमत खिसकाता वो जुमला उचक गया। بعید नहीं था मोहतरमा का वापस जलाली मूड ऑन हो जाए। बता नहीं सकते थे तुम ये? कब थामते वो बिगड़ी, खामखा इतनी ख्वारी उठाई। मौका दिया तुमने? जवाब हाजिर था। वो तज़बज़ब हुई। और मादाम मेरा फ़ोन एक्सचेंज हो गया था एक बंदे के साथ जो आउट ऑफ सिटी चला गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो फ़ोन ऑफ़ कर दे। कल रात ला कर दिया है उसने, और वही फ़ोन मैं घर कॉल्स वगैरह करने के लिए यूज़ करता हूँ। आप खामखा गिल्ट ट्रिप पर निकल गए। वैसे एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। बेशक अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। आखिर में शरारत से उसने दाईं आँख का कोना दबाया तो हकीकतन मिज़राब को अपने ओवर थिंकर होने पर जी जान से जलाल आया। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। वापसी के लिए वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़े थे जब गाड़ी से बमुश्किल 2 कदम की दूरी पर वो रास्ता रोक खड़ा हुआ। क्या है? उसके यूं हायल होने पर उसकी भवें सुकड़ी। बहुत दुश्वार है मेरे लिए उसका तसव्वुर भी, बहुत आसान है उसके लिए दुश्वार हो जाना। ना मैं कोई सड़क छाप मवाली हूँ, ना तुम कोई गली से गुजरती बेचारी लड़की। तुम मिज़राब उस्मानी और मैं आर्यान उस्मानी। एक ही लहू मुतहरिक है हमारी रगों में। ज़िद तुम में है तो ज़िद मुझ में भी है। लम्हाती तवक्कुफ़ के लिए ठहरा, साथ उसकी धड़कन भी ठहरी थी। वो लम्हाती तवक्कुफ़ के लिए ठहरा तो साथ उसकी धड़कन भी ठहरी। और तुम्हारा हसूल मेरे लिए चैलेंज नहीं, तुम्हें जीतना मेरी ख्वाहिश है, चाहत है, जो कि मुश्किल है। और तुम्हारे मामले में सहूलत पसंद आर्यान उस्मानी बेइंतहा मुश्किल पसंद है। फ़ी अमान अल्लाह। इंतहाई संजीदगी में अपने जज्बा जनू की सुलगती हुई तपिश लिए वो कहता उसके लिए दरवाज़ा खोलकर पीछे हुआ। मोहब्बत एक ना एक दिन ये हुनर तुमको सिखा ही देगी, बगावत पर उतरना और खुद मुख्तार हो जाना। वो हाथ हिलाता पैदल ही कच्ची सड़क पर एक जानिब बढ़ गया। मिज़राब साकित तो सामने उसी जगह खड़ी कितनी साथ तक उसकी चौड़ी पुश्त देखती रही थी। आर्यान उस्मानी हकीकतन इंतहा का सहूलत पसंद था, जो एक लाडले शहजादे की तरह ज़िंदगी गुजारता था। हवेली हो या हॉस्टल, 4 लोग उसके आगे पीछे गर्दिश करते ही रहते थे और वो शहजादा उसके लिए ख्वारी उठाना चाहता था। ये जानकर उसके अंदर की आम लड़की को खुश होना चाहिए या उस पुख्ता ज़हन हकीकत पसंद लड़की को पहलू झटक देना चाहिए। गुमसुम अंदाज में वो गाड़ी में बैठती सारा रास्ता सोचती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला।